Om Guruve Namah. All right. So, ladies and gentlemen, before we start the Manglik dosha, this video is very, very important. And there's a lot of fear that we have in the minds when a Manglik child is born. Maybe, especially if it's a girl child, so they always think, oh, it will be always difficult, to get married and things would be problem. So before we go ahead, I would write here two things. I am going to write here positive. Let me take the red color because we are using we're using Mangal, so I will prefer the color red to be used while writing. Let's give respect to Mangal Devata. So I'm going to write here Mars, and I would write here the positives of Mars and the negatives of Mars, and then we'll understand what is a Mangal dosha. So I want inputs from you people now. Okay, so tell me, what is the positive? I mean, the positives of the Mars. Somebody just entered. Okay. So who would tell me what are the positives of the Mars? Courageous, ambitious. Courageous, ambitious means I can write one single word called brave, right? And ambitious, yes. What else? Passionate, sir. Passionate is a very good word. So that means there's a lot of desire. The word passionate means desireful. There's a lot of desires are there with the Mangal. So Protective. protective, fantastic. So they are also protective. So protection. They're very energetic. It's very energetic. Energetic, yes. What else? Physical vitality. Physical vitality may be there, may not be there. Okay, so I have not seen with a lot of vitality. No, I have not seen that. So what else? Sir, ego, respect, mental health. Ego, is it the positive thing? No, sir. I'm just Sir- talking about the positive first. So very focused and determined to do whatever they want to do. Yeah, The determination. Determination is there. That's, Force, power, yeah, aggressive, dominating. Dominating leadership. is negative one, right? So determination is there. Leadership. Yeah, they are born leaders. So true. Force. They are having good amount of energies. Guruji, controlled aggression. No, they don't have controlled aggression. They have aggression. Quick decision makers. I mean, they're very confident with their decision making power. Decision making is a leader. So So even they have a good muscle power. no, they can. I mean, they would like to exercise a lot, but they may not have good muscular power. They may exercise. I mean, people have seen with very different, uh, things. See, muscle is Shani. Muscle is not Mars. What else? What is other positive things about Mars? Sorry? Sir, obsessive. They are obsessive. Dedicated. So they're humanitarian nature person, like if Mars. No. Sir, obsession is there in them. Obsession, I'm just talking of positive. Obsession will come, ego will come, all these things will come in negatives of Mars. So I want to differentiate between the positive and the negative. So right now I'm just talking of the positives.
Devotion, Sorry. devotion. Yeah, they are devoted to a sense, yes, because they have that, patriotism, devotion. They are very patriotic. So they are good devotees. Okay, enough. Negatives. What are they? Ego, Aggression. Aggression, ego, obsession. aggressive. I'll just write AGG, and then they are short-tempered, which is Short temper. they are like they get angry very easily, and they are ST, short-tempered. What else? What else? सर वो Obsess- डिजायर नेगेटिव भी हो सकता है ना सर? Yeah, अब हम नेगेटिव भी कर रहे हैं ना. सर These are obsessive जो है. ऑब्सेसिव, करेक्ट. ऑब्सेशन होता है उनके अंदर. अगर चंद्रमा खराब हो, और क्या हो सकता है? Stubborn. Yes, very stubborn. They don't like to be corrected. They don't like to be corrected. Corrections not allowed. उनको बोलेगा आप ऐसे नहीं ऐसे बोलो, फिर आपको बताएंगे वो क्या कर सकते हैं. People who are basically Mars, they think they are always correct. That's the problem with Mars, right? Now the problem is there are many people who think like this. These properties are there with many people, right? The problem with the Mars is that these properties are overflowing. They are overflowing with this. The flow is very high. Now, when they are overflowing, even overflowing of bravery is not good. You tend to lose your life. Overflowing of desires and overprotectiveness. How many of you would hate overprotectiveness? Isn't? Yes, sir. I mean, 99% of the people would hate overprotectiveness, right? Over of energy is also not good, no? Excess of everything is bad. You always want to be a leader, you always wanted to be an extra devotee or something all the time, always. And then it's this ocean of ego, ocean of aggression, energy, stubborn, obsessive, and they don't like to be corrected. That is Mars. It's not about Mars Lagna or Mars Rashi. It's the property of Mars. Now, this thing, if you're brave or if you have ego, you have excessive desires, you have aggression, and you are unmarried. Okay, you are unmarried. That means you are staying with whom? Mom and dad? Brother, sister? Your biological family, right? In the biological family, until you are not married, do you think all these properties, if someone has, he will not be thrown out of the home, or there will be never a divorce between you and your parents, or a divorce between you and your brother, sister? Never. You were stubborn, you were over energetic, you were over leadery kind of a personality, you were obsessive, and you had anger and aggression and ego. Your parents used to still tolerate it, no? Your brother also, they used to fight, and then suddenly say कोई बात नहीं, आप बहन भाई हो, इकट्ठे रहोगे, and this and that and everything. But do you think that there are certain houses that get activated after you get married? अगर उन घरों में मंगल चला जाए, मतलब उन घरों में ये सारी की सारे ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स वहां चले जाएं, तो आपको क्या लगता है कि आप किसी से लव मैरिज करवाओ और आप उससे बहुत प्यार करते हो, will he or she entertain this behavior? Yes or no?
No, sir. No, sir. No. The answer is no. Big no, no. No way. Now, Muni Parashara, he identified that these are the places where if you find this kind of a energy, there will be trouble. There will be trouble. What are those houses? And if you have Mangal on in these houses, you are a Manglik. Simple. Simple. No matter what Rashi, simple. Okay, आप मेरी बात समझ रहे हैं आप? So, ladies and gentlemen, you should understand that Mangal is not always bad, but it is good also. Trust me, it's not always bad, it's good also. Because at times bravery is required, at times desires are required, at times protectiveness is required, energy is required, determination is required. You got to be a leader, you got to be a born leader at times. But then there are certain houses in which if you have Mangal Devata, in those houses you need lot of attention and lot of care. जैसे आप एक एयरपोर्ट पे जाते हो कहीं पे या कहीं पे हाई सिक्योरिटी जोन पे जाते हो, वहां लिखा होता है ना अटेंशन, राइट? अटेंशन मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का. अब लोग क्यों बोलते हैं कि जी ऐसे लोग जिनका मंगल कुछ पर्टिकुलर हाउसेस में आता है उनका एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि भारत के अंदर कभी कभी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने की बहुत सदियों से वो चीज रही है. लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझदार हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है. सो मंगल मार्स की ये प्रॉपर्टीज हैं और आज हम मांगलिक योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं. मैं इसको क्लियर करूंगा यहाँ पे और आपको एक कुंडली बना के दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन से ऐसे भाव हैं जो मुनि पराशर ने आइडेंटिफाई किए, कौन से ऐसे घर हैं जो मुनि पराशर ने आइडेंटिफाई किए कि उन घरों में अगर मंगल हुआ तो वो मैरिड लाइफ पे, प्रोफेशन पे, इंसान की अकल पे, सोच पे, उसके सेक्सुअल बिहेवियर पे, उसकी फिजिकल एंड्योरेंस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे, राइट? उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन घरों में जब मंगल आता है तो इंसान मांगलिक होता है. सिंपल, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको. अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो लगन. इस बात को तो आप मानते हो ना कि लगन कितना इंपॉर्टेंट है. ये इंसान की बेसिक नेचर, उसकी प्रवृत्ति कि वो किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, उसका जो हमें निर्णय मिलता है वो प्रथम भाव से मिलता है. अगर खाली हो तो उसके लग्नेश के स्वामी को देखा जाता है कि वो कहाँ विराजमान है, और अगर खाली ना हो तो उस घर में जो ग्रह बैठे हैं उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है. अगर प्रथम भाव में कोई भी राशि हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 में तो नीच के भी हो जाएंगे, पर कोई भी राशि हो, कितने भी और ग्रह साथ बैठे हो, शनि बैठा हो, बुध बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, कोई भी बैठा हो साथ में, प्रथम भाव का मंगल अगर आप कुंडली में देखते हो यहाँ पर तो वो इंसान मंगलिक है. पॉइंट नंबर 1. चतुर्थ भाव का मंगल, 4th हाउस. 4th हाउस है आपके घर का माहौल.
आपके घर पर कितनी अच्छे तरीके से सब रहते हैं या कितनी बदतमीजी से सब घर पे रहते हैं, वो चतुर्थ भाव से समझ में आ जाता है। आपके घर में ऊंची ऊंची आवाजें आती हैं, चीख पुकार की, बच्चे चिल्लाते हैं, माँ चिल्लाती है, फिर हस्बैंड चिल्लाता है, ठीक है, पड़ोसी सुनते हैं, ये सारा माहौल चतुर्थ भाव से समझ में आता है। आपका ये सुख स्थान है। अब सुख के स्थान में ईगो आ जाए, अग्रेशन आ जाए, ऑब्सेशन आ जाए, ये सारी चीजें बहुत 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 डेंजरस हैं। दे आर वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स एट होम। 7वां भाव में अगर मंगल आ जाए, जो कि विवाह का भाव है, मैरिज का भाव है, तो वहां पर भी अगर मंगल हो तो आप मांगलिक हैं। अष्टम भाव में अगर मंगल आ जाए, विवाह के बाद की जिंदगी अष्टम भाव से देखी जाती है, विवाह देखा जाता है सप्तम से, लाइफ आफ्टर मैरिज देखी जाती है अष्टम से। और अष्टम भाव से एक चीज और भी देखी जाती है, वो है आपके इन लॉज, आपका ससुराल। आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, उनका बिहेवियर किस तरह का होगा। अगर अष्टम भाव में केतु आ जाए ना, तो आप सारी जिंदगी ये इमेजिन करते रहते हो कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अगर राहु आ जाए अष्टम भाव में, तो आपको सारी जिंदगी ये लगता रहेगा कि आपके ससुराल वाले आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन एक्चुअल में होगा नहीं ऐसा। आपके ससुराल वाले आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपको लगता रहेगा। यू ऑलवेज कीप फीलिंग एंजाइटी, फियर। राहु केतु अष्टम भाव में ये भी काम करते हैं। और मंगल देवता जो है वो यहाँ पर अष्टम भाव में रिलेशनशिप को ओवर अग्रेसिव कर देते हैं। मैं आता हूँ उस चीज पे। और द्वादश भाव है आपकी निद्रा का, आपके बेड प्लेजर्स का, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी का, आपके लॉसेस का। whenever we have a sexual activity we lose something, right? That is actually loss. You're losing your vitality, you're losing your shukranu, which can take you to the activation of kundalini. Activation of kundalini only requires sperms to be conserved or preserved within the body. That's it. That is one of the major requirements of of achieving the kundalini. Okay, so that's another thing. Now going ahead, in South India, now 99% only this arrow, you see, now this has become an arrow like this and like this, simple. It's like an arrow, right? अगर कुंडली में इस एरो में मंगल आ जाए, तो आप 1 मिनट में देख के बता देना कि द पर्सन इज मांगलिक। सिंपल। ये देखो, ऐसे और ऐसे। इन घरों में, अब वो घर कौन कौन से हो गए, तो मैं यहाँ घर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मांगलिक। और मांगलिक में मैं यहाँ पर घर लिख देता हूँ। फर्स्ट हाउस 1H, फोर्थ हाउस 4H, सेवंथ हाउस 7H, एट्थ हाउस 8H, and then the 12th house, the 12H. द्वादश भावा, प्रथम भावा, चतुर्थ भावा, सप्तम भावा, अष्टम भावा and द्वादश भावा. In South India, I'm going to write an exception for you here. The second house Mangal is also considered as Mangli in South India. I'll just put a circle here and I'll just write down here, only in the southern part of India. North, west, east, they don't consider it, but usually the South India, they consider the Dvitiya Bhava Mangal also as a Mangli.
राइट, तो वो इसको भी मांगलिक मानते हैं। अब क्वेश्चन है, द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हेन आई वाज स्टडिंग ज्योतिष, व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष, माय क्वेश्चन वाज why मंगल इन दी प्रथम भावा, चतुर्थ भावा, सप्तम भावा, अष्टम भावा and द्वादश भावा and second bhava in the South India is considered as Manglik, so that's something very, very important. Now, the first thing is, look at what is the first house. First house is your intelligence. It is not your physical trait. If somebody is saying, oh, the first house is physical traits, he or she is wrong. First house is intelligence. How intelligent or how stupid you are, how brave or how coward you are, how angry or how stable you are, right? That's seen from the placement of planets sitting in the first house. That's what is the first house. Now, if you have a Mars which is badly placed here, now how Mars will be badly placed? अगर तो मार्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत स्ट्रांग कौन से भाव में हो सकता है? अगर उच्च का है, उच्च का कौन सा है? 10 नंबर राशि में, 10 नंबर। अभी मैंने भादक में सिखाया था कि ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है अगर उच्च का मार्स लगन में बैठा हो, राइट? क्योंकि राशि तो वो शनि की है, मित्र राशि तो है नहीं, और वो उच्च का बैठा है। तो ऐसा इंसान इतना अग्रेसिव होता है कि अगर उसकी बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट्स, अब आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे तो घर में मेरे भाई का ये कॉन्सेप्ट है और वो तो बड़ा सीधा साधा है, तो उसको चंद्रमा की दृष्टि, उसके पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि, उसकी बुद्धि जो कि बुद्ध देवता है, उसकी स्थिति क्या है कुंडली में, या शनि की स्थिति क्या है कुंडली में, ये भी मैटर करेगा। केवल मंगल की पोजीशन मैटर नहीं करेगी, हाँ, लेकिन हम 99% ये बोल सकते हैं कि ऐसे पर्सन अपने लाइफ पार्टनर को एक चांटा लगाने वक्त 1 मिनट से या 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दे कैन बी अग्रेसिव, दे कैन बी फिजिकली अब्यूसिव, दे कैन बी verbally abusive, right? And they will take 1 minute to slap their partner, 1 second. Now, if you are a person who is not Manglik, imagine, for you, it is going to be a disaster. It is going to be a something जैसे प्रलय आ गई होती है, जैसे धरती फट गई, जैसे कि माँ सीता समा गई थी, आपका मन वैसा करेगा कि धरती फटे और धरती माँ आपको अपने गोद में ले ले। You will feel like that, right? This is how you feel. But on the same time, if you are also having Mangal here in the first house, or maybe in the 4th or the 7th, you are also a strong, passionate guy. If your spouse will slap you, you will answer him or her back by a slap, and then you'll hug each other and then ask sorry from each other. You will not be on the taking side, you will also give it back. That is why people say, oh, Manglik should get married to a Manglik, because you are also aggressive, he is also aggressive, right? The suffering is there, then the equal suffering is there. But when you are not aggressive and your life partner is very aggressive, then the one-sided suffering is very much. वो इंसान को हाइपरटेंसिव कर देती है, उसको डायबिटीज कर देती है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कर देती है, उसको ओबीज कर देती है। एक साइड की जो सफरिंग है, स्ट्रेस ईटिंग करता है इंसान एक साइड की सफरिंग से। अगर दोनों साइड में सेम सफरिंग हो तो फिर शायद दोनों एक लेवल पे आके कहते हैं कि आप मुझे कुछ मत कहो, मैं आपको कुछ मत नहीं कहती, क्योंकि उसको पता है कि आगे से कुछ बोलेगा या बोलूंगी तो डबल आगे से जो है रिटेलिएशन आएगी खतरनाक तरीके से। तो वो मंगल की कहानी है। अ सोल्जर इज फाइटिंग अनदर सोल्जर, बट इफ a soldier is fighting a civilian, the civilian will be at a major loss, no, because the civilian cannot fight with the soldier. But trust me, ladies and gentlemen, I must tell you one thing, that there will be
other placements of the planets as well. Kindly mute yourself, ladies and gentlemen, because there's a lot of static that comes up. Thank you. So, so there is a lot of aggression that is coming. So first house is what you are. The fourth house is the Sukh Sthana. Fourth house is your heart area. आपका दिल कैसा है? अगर आपके दिल में मंगल है, आप बहुत पैशनेट इंसान हो, आप प्रोटेक्टिव हो, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर उसके ऑपोजिट बिल्कुल भी पैशनेट नहीं है, he or she is not passionate at all, आपकी उनके साथ निभेगी नहीं. वो हमेशा आपको यही कहते रहेंगे, अरे यार आप तो बहुत बोरिंग हो, आप बहुत ज्यादा आप बहुत ही ज्यादा नॉन प्रोटेक्टिव हो, आप बहुत ज्यादा नीरस इंसान हो, आपकी लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ब्रेवरी नहीं है. तो ये कंप्लेन्स हस्बैंड वाइफ के बीच में चलती रहेंगी. और सप्तम भाव मंगल की सबसे खतरनाक पोजीशन है. मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं. आउट ऑफ ऑल दी मांगलिक्स, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है. दिस इज really I don't want to scare you by writing the word bad, but I want to write this is like challenging. This is like CH. It's like very, very challenging, right? It's like a question mark, right? That it is seriously very, very challenging. मैंने अपनी लाइफ में जब भी कुंडलियों का विवेचन किया, सप्तम भाव का मंगल अगर खराब हो, मान लो यहाँ पे राहु बैठ गया साथ में, इमेजिन करो, या यहाँ पे केतु बैठ गया, यहाँ पे राहु आ गया, या यहाँ पे मंगल के साथ केतु बैठ गया, मैंने अपनी उनकी लाइफ में कभी भी पारिवारिक या विवाहिक सुख नहीं देखा. मंगल केतु का श्रापित दोष, मंगल राहु का अंगारक दोष, यहाँ पर सप्तम, स्पेशली द 7th हाउस ऑफ मैरिज एसोसिएशन, राइट? यहाँ पर मैंने विद इन 1 year 2 year 3 years, चाहे मांगलिक के साथ ही शादी क्यों ना हो रही हो, मांगलिक के साथ ही शादी क्यों ना हो, राइट? वहां पर मैंने हमेशा कलेश देखा है, राइट? ऑलवेज. तो ये एक सबसे डिफिकल्ट पोजीशन है मंगल देवता की, क्योंकि यहां से मंगल देवता लगन को भी दृष्टि डालते हैं, देखते हैं. तो वो सप्तम भाव को भी खराब कर रहे हैं, लगन को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अग्रेशन दे रहे हैं. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक, और साथ में केतु है तो वो भी एक डेंजरस पिशाच दोष, या फिर अगर राहु है तो वो काफी ज्यादा, अगर शनि आ गया साथ में तो और भी वो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल दो अलग अलग पोल्स हैं. तो ये सप्तम भाव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाव होता है. इसमें मंगल देवता अगर आ जाए तो ये काफी हद तक लाइफ को, मैरिड लाइफ को खराब कर सकते हैं. मैंने जितनी भी कुंडलियां डिवोर्स वाली देखी हैं, उसके अंदर काफी कुंडलियों के अंदर मैंने मंगल सप्तम भाव में खराब यानी कि उसकी राशि फ्रेंडली नहीं है, पॉइंट नंबर 1. उसकी साथ में कंजंक्शन अच्छी नहीं है, वो नीच राशि में है या उच्च राशि में है, उनके ऊपर मेलेफिक्स की दृष्टि है, जैसे राहु और शनि दृष्टि डाल रहे हैं इनके ऊपर, या केतु या सूर्य के साथ बैठे हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पर आ गया है, या ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जिसका जो नक्षत्र स्वामी है वो इनका मित्र नहीं है या खराब पोजीशन पे है, या उनकी पदाएं ऐसी हैं जो कि खराब पदाएं हैं, राइट? क्योंकि कभी कभी मान लो अगर आपका मंगल ऐसी पदा में बैठा है जिस पदा के स्वामी बुध है, क्योंकि हर पदा का स्वामी राशि होती है हर पदा की, और राशि लॉर्ड आगे जो है वो स्वामी होता है हर पदा का. तो अगर वो खराब बैठा है तो आपकी 7th हाउस को खराब कर देगा, आपकी एसोसिएशन को, पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप ही नहीं चलेगी, आपके अंदर टॉलरेंस लेवल ही नहीं होगी. पार्टनरशिप तभी चलती है अगर आप अपने पार्टनर को टॉलरेट कर सकते हैं. अगर आप अपने पार्टनर को टॉलरेट नहीं कर सकते, आपका विवाह नहीं चल सकता. आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो ये
कुछ कंडीशंस हैं। और अगर हम अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव सडन चेंजेस का है, एक्सीडेंट्स का है, राइट। अब आप बड़े अग्रेसिव पर्सन हो, ओवर एनर्जी है, आप गाड़ी तेज चलाओगे, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपको खाना खाने में इतनी तीखे चीजें पसंद होगी कि आपको पाइल्स हो सकती है, बवासीर हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, राइट, क्योंकि ये रेक्टम का एरिया भी है। ये जो एरिया है वो रेक्टम एरिया है, राइट। वहां पर आपको मार्स की एक्टिविटी गर्म, वो गर्मी पड़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। एसिडिटी तो चलो 5th-6th एरिया है, 5th-6th हाउस का। आपको यहाँ पर लॉसेस हो सकते हैं, सडन लॉसेस, आपकी अपनी बेवकूफ़ी और अग्रेशन की वजह से, दे विल बी लॉसेस, लॉस होगा यहाँ पर। आप 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान से हाइपर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है, राइट। अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर जब मार्स होता है तो हो सकता है कि आपके इन लॉज के साथ ना बने, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली का है, आपकी डिजायर बड़ी होगी अपने इन लॉज से। आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा कि आपको हमेशा भगवान की तरह पूजा जाए, आपको बहू या जवाई कहा जाए, और आप बेटा या बेटी ना बनो, और अगर बेटा बेटी बन भी जाओ तो अंदर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो। तो वो मार्स इन दी 8th हाउस है कि आपकी एक्सपेक्टेशन, जहां एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी वहां तो कलेश होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम द्वादश भाव की बात करें, 12th हाउस की, तो यहाँ का जो मार्स है वो लॉसेस इन द सेंस, लॉसेस ऑफ वाइटेलिटी, ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट। सो एट टाइम्स योर पार्टनर विल सी यार ये क्या, मतलब इतना ज्यादा भी क्या हो गया, that 24 hours, at least 20 hours you are thinking of sexual activity, right? Or you're thinking of any criminal activity. Mars in the 12th house is, you know individually thinking crimes, right? So that is again Mars in the 12th house. वो भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन होती है, right? And on the same time, people think in South India that Mars in the 2nd house also is a Manglik dosha. Why Manglik dosha? Because they think that 2nd house is house of taste, 2nd house is house of money, 2nd house is house of रिश्तेदारी, कुटुंब, राइट। ऐसे सर्कमस्टांसेस में मार्स आपको टेस्ट इतना गंदा दे सकता है कि 24 घंटे आपका कुछ ना कुछ गलत या कुछ ना कुछ मिर्च मसाले वाला तीखा कुछ ना कुछ खाने का मन कर सकता है। राहु साथ बैठा हो तो आपकी वाणी इतनी गंदी हो जाएगी, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो यू विल स्पीक सो बैड दैट यू कांट इवन इमेजिन। आप इतने गलत तरीके से बात करेंगे, बिकॉज मार्स इन द 2nd हाउस आपकी वाणी को बहुत तीव्र कर देता है, बहुत अग्रेसिव बना देता है। तीसरे भाव का मंगल कम्युनिकेशन अग्रेसिव बनाता है। कम्युनिकेशन अग्रेसिव होना कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कमांड होगी समाज पे, सोसाइटी पे, लेकिन आप बड़ी स्ट्रॉन्ग और खतरनाक बात बड़े प्यार से कह देते हैं, दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है उसको। लेकिन आप आम सी बात बदतमीजी से और अग्रेशन से कहते हैं, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। दैट इज मार्स इन द 2nd हाउस। ये आप बात सही कह रहे थे, आप अपनी बात पे बिल्कुल सही थे, लेकिन आपके कहने का तरीका इतना गंदा था जिसकी वजह से आपको जूते पड़े, जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा, जिसकी वजह से आपके जीवन में खटास आई। वो क्या है? मार्स इन दी 2nd हाउस, राइट। वो कुटुंब, वाणी, आपके टेस्ट बड्स, आपके एसेट्स, आप पैसे के लिए इतने पैशनेट हो सकते हैं अगर साथ में राहु बैठा हो कि आप यू कीप थिंकिंग ऑफ मनी 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 ऑल द टाइम। एंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट 8th हाउस है। सो सच पीपल कैन एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम इन लॉज ऑल्सो। शायद मुझे यहाँ से कुछ मिले, यहाँ से मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, मैंने तो 2 चीजों साथ खाना खिला दिया, मैं इतनी देर बाद गया था, मुझे 5-7 चीजें तो रखनी चाहिए थी, मुझसे पानी भी नहीं पूछा, मेरे को कुछ खाना तो अच्छा खिलाया लेकिन मुझे कुछ मिठाई नहीं दिया, कुछ खाने को नहीं दिया। ये कोई अकल थोड़ा होती है? ऐसे थोड़ा चलता है।
तो ऑल दीज नॉनसेंस कंप्लेंट्स, जहां पर इंसान को उस चीज से ऊपर उठ जाना चाहिए जब विवाह हो जाए। तो अगर खाना है तो अपना खा लो, अपनी बीवी को बोल दो कि यार ये बनाओ, यार ये खाना है, तो वो बनाएगी, दैट्स इट। So technically, people think that even this position of Mars is not a very good position, to be very honest. Right? It is seriously a very, very bad position in terms of food habits, in terms of other XYZ things. So these are the positions where if you see a Mars in anybody's chart, you can say yes, you are मांगलिक। इसके अलावा मंगल किसी भी और घर में आ जाए तो वो मांगलिक नहीं है। मंगल वक्र हो, मंगल अस्त हो, मंगल उच्च का हो, मंगल नीच का हो, मंगल किसी भी राशि में हो, मंगल किसी भी नक्षत्र में हो, डिग्री वाइज बलाबल हो या ना हो, लेकिन आप मांगलिक हैं, यू आर मांगलिक। वो कितना इफेक्ट देगा ये वाली कंडीशंस बताएंगी जो मैंने आपको बताई है कि आपकी राशि कौन सी है, या आप उच्च है, नीच है, डिग्री वाइज बलाबल नहीं है, योग कारक है, मारक है, ये रिएक्ट कैसे करेगा वो ये कंडीशंस बताएंगी। लेकिन मंगल किसी भी स्थिति में इन घरों में आपको नजर आया तो आप उस जातक को मांगलिक कह सकते हैं। यू विल से दैट ओके यू आर मांगलिक, बिकॉज मुनि पराशर के हिसाब से ये जो घर हैं, प्रथम भावा, चतुर्थ भावा, सप्तम, अष्टम, द्वादश और द्वितीय भावा, ये मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और वो नजर भी आ रहा है, आप खुद कैसे हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, आपकी पार्टनरशिप एसोसिएशन को आप कितनी वैल्यू करते हो। अब झगड़े हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों होते हैं? या तो घर में सुख का माहौल नहीं होता, चार पैसे नहीं होते, या आपको पार्टनरशिप निभानी नहीं आती, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, या इन लॉज में से कोई ना कोई गंध आपके जीवन में आ जाता है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, चाहे सिस्टर इन लॉ हो, कोई ब्रदर इन लॉ हो, कोई ना कोई कलेश डालने वाला रिश्तेदार, 8th हाउस, वो कलेश हो जाता है। कोई सडन इवेंट हो जाता है, इंसान को लगने लग जाता है यार ये ना शादी के बाद ये इवेंट हुआ हमारी लाइफ में, इसकी वजह से ना मेरे को लगता है ये लाइफ पार्टनर है वो लकी नहीं है, वो नेगेटिविटी। और दूसरा भी मेरे पास एक हफ्ते पहले केस आया जिसमें लव मैरिज थी, लड़के के माँ बाप भी नहीं थे, लड़की अच्छे घर से, लड़के भी अच्छा वेल सेटल्ड था। उनकी शादी का टूटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लड़के की बहनों ने बोल दिया उस लड़के को कि ये तू तो बड़ा नौकर हो गया है, तू तो जीरो हो गया है, दो तेरी बीवी कहती है तो वो खाता है, वो तेरे को बैठती है बोल, तो बैठती है तो बैठ जाता है, वो कहती है तो खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, वो कहती है कि इतने बजे जाना है तो इतने बजे जाता है, तू तो आज्ञाकारी मतलब हस्बैंड है, तू डॉग है, यू आर लाइक अ डॉग इन हर हैंड। वो भड़क गया बंदा। उसके बाद घर आके उसकी बीवी ने बोला, क्योंकि माँ बाप थे नहीं और बहन जो है, बहनें हैं उसकी 2-3, उन्होंने अपने हिसाब से उसको सारा पंप कर दिया, मूर्ख इंसान। घर आके बीवी ने बोला आप 10 मिनट रुक जाओ, मैं बस अभी ये ना थोड़ा सा एक मेरे 2 कपड़े रह गए, ये आप इसको सुखा के मैं आपको चाय बना के देती हूँ। वो 10 मिनट बाद चाय बना के लेकर आई तो चाय का कप उसके ऊपर ही फेंक दिया, वो चाय जल गई। इतना गुस्सा, अग्रेशन अंदर आया, उसके हाथ पांव जल गए। फिर बाद में उसको पछतावा हुआ तो वो जाके इलाज भी करवाया उसका। फिर वो आगे से उसने ऐसा बिहेवियर उसका नहीं देखा था, उसने उससे क्वेश्चन किया, झगड़ा और बढ़ गया। अभी 1 साल से वो यहाँ है वो वहाँ है। अब ईगो क्लैश कर गई, तुमने मुझे 1 महीना फोन नहीं किया, तुमने मुझे 15 दिन फोन नहीं किया, यू डोंट केयर। उसको पता लग गया, उसकी बहनें बीच में आ गई। सो 8th हाउस प्रॉब्लम, एक्सटेंडेड फैमिली इज क्रिएटिंग नॉनसेंस। इतना अच्छा कपल, इतना अच्छा चल रहा, कोई झगड़ा ही नहीं है कि नाउ दे आर फाइलिंग ए डिवोर्स केस, they are saying will not live। किस्मत खराब, वो लड़की रो रो के उसका बुरा हाल कि नवनीत भैया कैसे कैसे जिंदगी कैसे चलेगी, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बन जाती हैं लाइफ के अंदर। तो इन सब से किस प्रकार बचा जा सकता है? बचा जा सकता है अपनी अकल से, सूझबूझ से, बुद्धि से, दिमाग से, दिल से। दिल चतुर्थ भाव है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव सेक्सुअल एक्टिविटी का, ऑलवेज यू आर थिंकिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल प्लेजर ऑल द टाइम।
बिकॉज आपका पैशन चला गया ना 12th हाउस के अंदर, यू आर बिकमिंग वेरी पैशनेट। अब वो पैशन लॉसेस का भी हो सकता है, राइट, वो किसी भी चीज का हो सकता है, एट टाइम्स, इफ यू हैव राहु सिटिंग हियर और यू हैव एनी मेलेफिक प्लैनेट और मंगल सिटिंग इन द राहु, तो ऐसे लोग पॉर्न बहुत ज्यादा देखते हैं, उनका सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल वाइटिलिटी लॉस, उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। अब अगर सामने वाला बंदा सात्विक हो, उसको लगे कि सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए होती है, तो वो चीज उस पैशनेट बंदे को समझ में ही नहीं आएगी। शादी से पहले आपके पास मिलने जुलने का कितना वक्त होता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कहीं घूम आए, 3 दिन एक साथ रहे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब किसी के साथ 3 महीने या 3 साल आप रहते हो, तो उसमें झगड़ा, उसकी अच्छी बुरी आदतें, राइट, उसका ऐसा रूप जो कि बिखरे हुए बाल और कोई भी अपने आप को तैयार करके मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, जब ऐसा रूप नजर आता है, तो दो चीजें होती है, या तो आपको बहुत प्यार हो जाता है उस इंसान से, या आपको नफरत होनी शुरू हो जाती है उस इंसान से। दोनों में से एक चीज होती है उसमें। और अगर आप ज्यादा पैशनेट हैं तो आपको प्यार नहीं हो सकता, अगर आप एवरेजली पैशनेट हैं तो आपको प्यार होगा। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं पर आपका जो है द्वादश भाव है मंगल का, और द्वितीय भाव खाने पीने का, टेस्ट बड्स का। अब आप सामने वाले को समझाते जा रहे हो कि आप मत खाओ, आप बीमार पड़ जाओगे, यू आर बर्पिंग, फार्टिंग, सामने वाला जो साथ वाला बंदा है वो ऐसा है ही नहीं, उसको तो वक्त के साथ खाना है, थोड़ा बहुत खाना है, या कभी कभी इंजॉय करना है। अगर आप मतलब जानवरों की तरह खाना खा रहे हो और आपका लाइफ पार्टनर आपको देख रहा है, ये क्या चल रहा है? शादी से पहले तो ये सारी चीजें चलो अच्छी लगती हैं, वो 10 रोटी खाता है, वो 15 रोटी खाता है, यू नो लेकिन शादी के बाद जब आपको 2 लोगों के लिए 40 रोटियां बनानी पड़ती हैं और फिर वो गाली भी आपको खाने को मिलती है साथ में, और ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, यू आर ओवरली पैशनेट अबाउट योर टेस्ट बड्स, ये कैसे है, वो कैसे है, रिश्तेदारी में जाना है तो गलत बोल देना किसी को, किसी ना किसी रिश्तेदारी के साथ कलेश कर देना, या एक्सपेक्टेशन रिश्तेदारी से बढ़ा लेना। तो ये सारी चीजें जो है विवाह के ऊपर जो है वो खराबी करती हैं, वो दिक्कत परेशानी का सामना। आउट ऑफ दीज 12 houses, these are the houses that Muni Parashar has identified that Mars sitting here, creates a lot of issues and a lot of problems. अब मान लीजिए, अब अगर ये तकरीबन 6 घर हो गए हैं जो कि 12 में से हैं, तो मतलब 50 to 60% लोगों की कुंडली में मंगल दोष होना चाहिए। और अगर है उनकी कुंडली में मंगल दोष, तो क्या वो इसी तरह से रिएक्ट कर रहा है? द आंसर इज नो, वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। बहुत सी, तकरीबन 21 ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बेस के ऊपर मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, जिनको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे और आपको एक एक करके सिखाएंगे कि किस प्रकार मंगल दोष अगर किसी की कुंडली में हो, मंगल दोष मतलब आपकी कुंडली में मंगल की इन घरों में पोजीशन, और उसमें आपको बताया जाएगा कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको करने से आपके जीवन, या जो स्टेप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट, नॉट करने से, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओ जुपिटर की दृष्टि आ गई, ओ जुपिटर के साथ हो गया, अच्छा चंद्रमा आ गया यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर आ गया, ये इस राशि में आ गया, तो उसका इफेक्ट ही नलीफाई हो गया, उसका इफेक्ट ही कम हो गया। दैट इज कॉल्ड द कैंसलेशन ऑफ द मंगल दोष, राइट। सो वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। जब आपको वो समझ में आ गया, फिर तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये मंगल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप मंगल हो। आपको मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 99%, आई एम रिपीटिंग गोल्डन वर्ड्स, 99% मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। मुनि पराशर ने, परमात्मा ने, मेरे पास एक कुंडली आई थी पिछले 3 साल में पहली बार, और वो मेरे पास, आई एम नॉट हैविंग दैट कपल्स कुंडली में, तो मैं आपको दिखाता, वो फर्स्ट कुंडली थी जहां पर मंगल दोष कैंसिल नहीं हो रहा था। दैट वाज द फर्स्ट कुंडली ऑफ माय लाइफ। अदरवाइज 99% मंगल दोष जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसके स्टेप्स हैं, वो तकरीबन 21 स्टेप्स हैं जो हम करते हैं, और उन 21 में से अगर 5-6 स्टेप्स भी हमारे मैच कर जाती हैं, एक स्टेप भी मैच कर जाता है, तो आप मांगलिक
से नॉन मांगलिक की शादी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 99% मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह हो सकता है। 99% यस है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि वो बृहस्पति आ जाए, जुपिटर आ जाए, कुछ ऐसी राशियां हैं, नवांश में कुछ ऐसी पोजीशंस हैं मंगल देवता की, राइट। लड़के या ऑपोजिट पार्टनर, स्पाउस के पार्टनर में शनि की कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसकी वजह से जिसके साथ आप विवाह कर रहे हो अगर वो मांगलिक है तो आपका मंगल दोष इजीली कट जाता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जितना पैशन है, ईगो है, डिजायर है, ऑब्सेसिवनेस है, अग्रेसिवनेस है, प्रोटेक्शन है, वो सारी बैलेंस हो जाती है सामने वाले चार्ट से। तो वो बैलेंसिंग जो है उसको मंगल दोषा कैंसल कहा जाता है, जो हम आपको कल सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और ड्यूरिंग मेडिटेशन मुझे एक हुक्म हुआ था परमात्मा से कि मैं आपको ये दोनों लेक्चर दोनों बैचेस को करवाऊं ताकि ये एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। और ये 20-25% सिलेबस है, मतलब आपको जब आप ज्योतिष प्रैक्टिस करेंगे तो दिन में अगर आपको 10 लोग अप्रोच करते हैं उसमें से 5 लोगों की क्वेरी मंगल दोष, नॉन मांगलिक, मांगलिक विवाह के साथ ही जुड़ी हुई होंगी। और इस पे एक स्ट्रॉन्ग पकड़ एस्ट्रोलॉजर की उसको बहुत अच्छे कर्म करवाने के लिए आगे बाध्य होती है, क्योंकि आपका एक डिसीजन किसी के आने वाले 40-50 साल जो है उसको बचा सकता है। आपका एक डिसीजन 2 लोगों की मोहब्बत बचा सकता है, 2 लोगों का प्यार बचा सकता है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। पंडित जी के पास आप जा रहे हैं, मंदिर में पंडित जी बैठे, उन्होंने ना नवांश खोला, ना नक्षत्र चेक किए, ना डिग्री चेक की, ना नवांश की आगे जो नक्षत्र हैं उनके पदाओं का कुछ चेक किया, ना उनके नवांश चेक किए, ना किसी प्रकार के वर्गोत्तम या स्वराशि कुछ भी चेक, या वर्ग चार्ट के अंदर पोजीशंस कुछ भी नहीं चेक किया। सिंपली देखा ये मांगलिक है, इन घरों में मंगल बैठा है, दूसरे लाइफ पार्टनर का इन घरों में मंगल नहीं बैठा, ये भाई साहब ये शादी नहीं हो सकती। दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता है। 99.99% मंगल दोष हमेशा कैंसल होता है। सामने वाले की कुंडली में कोई ना कोई योग या इसी कुंडली में कोई ना कोई योग निकल के आता है जो मंगल दोष को काट देता है। इस बात की 100% गारंटी है। हाँ, 1% कभी कभी क्या होता है, मंगल होने के साथ साथ आपका 7th हाउस ही खराब है, श्रापित है, और पक्का श्रापित है, या चतुर्थ भाव श्रापित है, या शुक्र खराब है, या लग्नेश नीच का हो गया, या कोई ऐसी दशा चल रही है जिससे आप बर्बाद हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 2 कुंडलियां मैच करते हुए भी हम मना कर देते हैं कि मत करो, मत करो, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आने वाले 10 साल ही खराब है, राइट। बट मंगल दोष के कारण विवाह या रिश्ते को छोड़ना, ये मुनि पराशर ने पूरे पराशराहोरा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, इसको बना लिया गया। फिर मंगल दोष की पूजाएं करवाई गई, आपका कुंभ विवाह करवाया गया, आपके पेड़ों के साथ विवाह करवाए गए, फिर कुंभ को तोड़ा गया, पेड़ों को काटा गया, आपका उनसे डिवोर्स करवाया गया, फिर दूसरी शादी मनुष्य से करवाई गई। ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, एक प्रथा बनी, इसमें खर्चा भी होता है, लोगों के घर भी भरे जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है चलती, इसके बारे में विचार कीजिएगा, सोचिएगा ये कहाँ तक चीज सही है और कहाँ तक ये चीज गलत है, राइट। सो ये मेरा विवेचन था, राइट, मांगलिक और नॉन मांगलिक के ऊपर। और कल हम कक्षा के अंदर जो है इसकी कैंसलेशन सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको कैंसलेशन सीख के। और इतने डिफिकल्ट तरीके से वो कैंसलेशन हमें सिखाई गई, मुझे महीनों लगे उन कैंसलेशंस को समझने में लेकिन मेरा ये वादा है आपसे कि आपको कैंसलेशन में 40 मिनट के अंदर सभी योगों की कैंसलेशन आपको मैं सिखा दूंगा, और सबसे सरल तरीके से, फ्रॉम द इजीएस्ट वे, और वो आपके मन में छप जाएगी 100%। आपको कोई वीडियो, कोई लेक्चर उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मांगलिक नॉन मांगलिक के ऊपर, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Easy? Easy, sir. Easy. Now you can understand what is the exact meaning of Manglik. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। देखो वीडियोस तो सविता जी आपने